Hello students, welcome to lecture number 6 on oxygen family. Previous lecture was as regard to allotropes of sulfur and the preparation of sulfur dioxide, manufacture of sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। आप एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं इसको। एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम अबव 575 केल्विन्स। जिप्सम एज यू नो योर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 575 केल्विन पे अगर आप इसको हीट करेंगे यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट एंड योर वाटर विल बी removed from this. You will get anhydrous calcium sulfate and this anhydrous calcium sulfate is called anhydride. anhydrous calcium sulfate को बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड को अगर हम हीट करें कार्बन के साथ, किसके साथ हीट करें इसको? कार्बन के साथ, एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 1275 केल्विन्स you will be getting 2CaO plus SO2 plus CO2. So this is another way of getting sulfur dioxide. अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सो इट कैन नॉट बी कलेक्टेड by downward displacement of water. Generally what we do is we collect the gases by downward displacement of water, but that method is applicable only for those gases which are either very slightly soluble in water or not at all soluble in water. But because your sulfur dioxide is highly soluble in water, it cannot be collected by downward displacement of water, although it is collected by upward displacement of air. Upward displacement of air से collect करते हैं because it is heavier than air. We will be discussing that in the properties of sulfur dioxide. So you have to remember that it has to be collected by upward displacement, collected by upward displacement of air, upward displacement of air. Being heavier than air, we will be collecting it by means of upward displacement of air. So this you have to keep in mind. Now before we discuss the properties of sulfur dioxide, we must first discuss the structure of sulfur dioxide. Structure of sulfur dioxide. Sulfur dioxide में your sulfur is forming 4 bonds, and the ground state electronic configuration of sulfur, valential electronic configuration is 3s2 3p4, and your 3d orbitals they are lying vacant. Now since in sulfur dioxide sulfur has to form 4 bonds, so what happens is we have to excite one of these 3p electrons to the vacant d orbital. So in the excited state the electronic configuration of sulfur will become this. Now when sulfur is going to form the 4 bonds, 2 with each oxygen atom, so one bond will be sigma and other will be pi. एक sigma bond होगा, एक pi bond होगा with each oxygen. So 2 pi bonds are to be formed, so these 2 atoms electrons they are left out for formation of pi bond, for formation of pi bond. ये आपकी pi bond की formation के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर लिए, तो इसका मतलब इसमें क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. So in sulfur dioxide your sulfur is sp2 hybridized with one of the sp2 hybrid orbital having a lone pair of electron
and the other two hybrid orbitals, they are forming the sigma bond with the oxygen. So structure will be like this. This is the one sp2 hybrid orbital which is having the lone pair of electron. There is one sigma bond with oxygen, another sigma bond with oxygen. Now these two, one p orbital of sulfur will be forming a pi bond with oxygen. This is p pi p pi. आपके ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल और सल्फर का भी p ऑर्बिटल p pi डबल बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और इधर आपका जो है एक बॉन्ड बनेगा p पाई d पाई. d पाई p पाई लिख रहा हूं मैं, सल्फर का पहले लिख रहा हूं d पाई p पाई. तो एक बॉन्ड बनेगा आपका p पाई और एक बनेगा d पाई. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दीज टू पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट, one is p pi and other one is d pi, so your sulfur dioxide will be existing in two allotropic forms. ये दो allotropic form में exist करेगी, और sorry दो allotropic form नहीं, sorry दो resonating form में. It will exist in two resonating forms. The second resonating form will be your sulfur. This is your lone pair, this is your oxygen. Here it is d pi p pi. Each oxygen will be having the two lone pairs, and the second one is here p pi p pi. तो पहले ये वाली ऑक्सीजन बना रही थी d pi p pi, अब ये p pi बनाएगी. तो these are the two resonating structures of sulfur dioxide. So this is as regard to structure of sulfur dioxide. Now let us come to the physical properties of your sulfur dioxide. Next is your physical properties. Physical properties of sulfur dioxide. Physical properties of sulfur dioxide. Just your sulfur dioxide is a colorless gas with suffocating and pungent odor. Colorless gas with pungent, suffocating and suffocating. Suffocating का मतलब है इसके अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका दम घुट रहा है, ठीक है. सफोकेटिंग ऑर्डर. तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, कलरलेस है. दूसरा है इट इज पॉइजनस. इट इज पॉइजनस इन नेचर. ये आपकी पॉइजनस गैस है नेचर के अंदर, जहरीली है ये गैस. highly soluble in water, as I told you just now, highly soluble in water. पानी में बहुत ज़्यादा घुलती है, and approximately 1 लीटर पानी में 8 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड घुल जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. It is heavier than air. It is heavier than air. एयर से हैवी है ये. इसकी जो वेपर डेंसिटी है दैट इज योर, यू कैन से 32. and the vapor density of dry air, as I have told you a number of times, that is 14.4. so it is heavier than air. इसके अंदर क्योंकि बॉन्ड पोलर होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, so there are strong dipole interactions. As a result of this, it can be easily liquefied. It can be easily liquefied.
बड़ी आसानी से लिक्विफाई हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही। क्या करना है, सिर्फ एक फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर ट्यूब आपने डाल के रखनी है, यू ट्यूब, और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप क्रॉस करेंगे, गुजारेंगे, पास करेंगे एट योर 1 एटमॉस्फेयर, नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट विल गेट लिक्विफाइड। जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है दैट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 263 केल्विन, और ये लगभग फ्रीज कर जाती है 200.3 केल्विन के ऊपर। ठीक है, स्नो लाइक मास बनेगा जब ये फ्रीज करेगी। तो नाउ लेट अस कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, इट कैन एक्ट एज लुईस बेस ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर। अभी हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर एटम के ऊपर, तो इट कैन एक्ट एज ए लुईस बेस। although you must remember, although an aqueous solution of sulfur dioxide is acidic, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इसका क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लेके गीला करके उसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। क्यों हो जाता है वो? बिकॉज योर सल्फर डाइऑक्साइड विल डिजॉल्व इन वाटर टू गिव यू सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट इज एसिडिक। इफ इट इज हीटेड to a temperature of approximately, you can say 1473 Kelvin, decomposes on heating at a temperature of 1473 Kelvin in your sulfur and sulfur ट्राइऑक्साइड। सल्फर और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाती है एज इज गिवन बिलो। मैं रिएक्शन इसकी लिख रहा हूं। SO2 1473 केल्विन पे हीट करना है आपने, SO3 प्लस सल्फर, SO3 प्लस सल्फर में चेंज हो जाएगी ये इन दिस वे। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तब भी ये डिकम्पोज हो जाती है। बट नाउ इट गिव यू सल्फर मोनोऑक्साइड, बजाय कुछ और देने के ये सल्फर मोनोऑक्साइड देती है और साथ में देती है आपकी ऑक्सीजन। तो ये दो इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज नाइदर कंबस्टिबल नोर ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्चन। ना तो ये कंबस्टिबल है
ना कंबस्टन को सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, बर्निंग एलिमेंट्स, दे कीप ऑन बर्निंग इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वो जलते रहते हैं। वो सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड को उसके एलिमेंट में तोड़ दें, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन में जो डीकंपोज कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, वो जलते रहेंगे। जैसे बर्निंग मैग्नीशियम, इट विल कीप ऑन बर्निंग इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड में जलती रहेगी, बर्निंग सल्फर, ठीक है। कार्बन विल आल्सो कीप ऑन बर्निंग in an atmosphere of sulfur dioxide like this. So ऐसे एलिमेंट्स जो इसको इसके एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, सल्फर में और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, दे विल कीप ऑन बर्निंग। नेक्स्ट इज द एसिडिक नेचर। मैंने बता ही दिया, पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं, दे विल गिव यू सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो एसिडिक नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड कैन कंबाइन डायरेक्टली विद बेसिस। फॉर एग्जाम्पल NaOH के साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी रिएक्शन कराएं, ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए ये, देन यू विल गेट Na2SO3 प्लस H2O, साल्ट प्लस वाटर बनेगा, 2 NaOH प्लस SO2, इट विल गिव यू Na2SO3 प्लस योर वाटर। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम इंस्टेड ऑफ NaOH इफ वी टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, तो ये आपकी कैल्शियम सल्फाइड बनता है। दिस कैल्शियम सल्फाइड इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये नीचे बैठेगा, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है दैट विल टर्न मिल्की, साथ में आपका बन जाएगा 2H2O। जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। और बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही ये कैल्शियम बाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल डिसॉल्व मोर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम बाइसल्फाइड, एंड दिस कैल्शियम बाइसल्फाइड बीइंग सोल्यूबल, पानी में सोल्यूबल होता है, तो आपकी जो मिल्कीनेस है दैट विल डिसअपियर। मिल्कीनेस क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। तो ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। नेक्स्ट लेट अस कम टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। मैंने अभी आपको बताया था इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट अस कम टू द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज of sulfur dioxide. Sulfur dioxide can act as oxidizing agent and can oxidize a number of substances. जैसे पोटेशियम है, it will be oxidized to potassium sulfite and so potassium thiosulfate, K2SO3 plus K2S2O3, इसमें चेंज हो जाएगा ये, 3 सल्फर डाइऑक्साइड विल बी देयर। सो दिस इज द रिएक्शन विद योर पोटेशियम। H2S मैं रिएक्शन करके ही आया था जब मैंने कोलाइडल सल्फर किया था। H2S विल रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव यू H2O प्लस सल्फर, H2O प्लस सल्फर। सिमिलरली हेलोजन्स आर रिड्यूस टू हेलाइड्स। जो हमारे हेलोजन्स हैं जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं H2O के साथ, मॉइस्ट, इसमें वाटर होना चाहिए, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, यू विल गेट 2HBr प्लस योर
H2SO4. You will get H2SO4. So bromides, they are, halogens are oxidized to your सॉरी ये रिडक्शन रिएक्शन लिख दी मैंने गलती से। ये रिडक्शन रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आल्सो इट ऑक्सीडाइजेस बर्निंग आयरन इनटू योर ऑक्साइड एंड योर सल्फाइड। You will get this oxidation reaction done when you allow burning iron to react with sulfur dioxide. Carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. Carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. So these are the oxidation reactions. Now let us come to the reduction reactions. Because sulfur dioxide is a better reducing agent compared to oxidizing agent, reducing nature, so we will be having a number of reduction reactions of sulfur dioxide. सबसे पहले ये इसका रिड्यूसिंग नेचर क्यों है, एक चीज समझ लेना। ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड डू नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ड्राई है तो रिएक्ट नहीं करेगी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सिर्फ वाटर के अंदर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर के अंदर ये क्या करती है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, दिस देन कैरी आउट द रिडक्शन। ये रिडक्शन करती है, तो जब तक पानी नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड विल नॉट बी एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो पहली रिएक्शन वही लिख देते हैं जो मैंने गलती से लिखी थी। हैलाइड्स, हैलोजेंस टू हैलाइड्स, हैलोजेंस टू हैलाइड्स। आपका Br2 प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल गिव यू 2HBr प्लस H2SO4। एक चीज ध्यान रखना आपने, इस रिएक्शन में यहां ये मतलब रिएक्शनों को जनरली लोगों को ये है कि रट्टा मारना है, ठीक है। तो रट्टा भी थोड़ा सा लॉजिकल और कंसेप्ट के हिसाब से मारोगे तो ठीक हो। दिस इज द रिएक्शन, मेन रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन में आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो इनवेरिएबली हर रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ही बनेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, मैंने कहा हैलाइड्स, हैलोजन से हैलाइड्स, मतलब आपका क्लोरीन है तो क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ HBr बनेगा, HCl बनेगा। सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई ए ब्रेन, ए लिटिल ब्रेन टू रिमेंबर दिस रिएक्शन, जस्ट नॉट ब्लाइंडली क्रैम इट। आंख बंद करके रट्टा नहीं मारना है इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू विल गेट सम लॉजिकल थिंग बिहाइंड दीज रिएक्शंस। दूसरा, it decolorizes acidified पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 को ये डीकलराइज कर देती है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हो। SO2 जब ये रिएक्शन होगी आपकी, योर पोटेशियम विल बी कन्वर्टेड टू पोटेशियम सल्फेट KMnO4 का 2MnSO4,
और साथ में आपका बन जाएगा योर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैंने कहा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनना ही बनना है, अभी बताया मैंने। दिस इज़ द मेन रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन। तो ये प्रोडक्ट है तो ये बनेगा ही बनेगा। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आपका सल्फेट 3 है तो सल्फ़र आपको 3 चाहिए, 3SO2 लगेगा यहाँ पे। पोटाशियम बैलेंस है, Mn बैलेंस है, H2 बैलेंस है, ठीक है। सॉरी 1 और 2 3 और 1 4, तो 4SO2 लगेगा यहाँ, 4SO2। सो यू कैन बैलेंस दिस रिएक्शन पोटाशियम परमैंगनेट। इस रिएक्शन को अभी बैलेंस होगी क्या, 2KMnO4 प्लस योर SO2 प्लस H2O, K2SO4 प्लस 2MnSO4, 2 और 1 3 और 1 4, 4 सल्फर है आपके पास। ऑक्सीजन कितनी है, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, और इधर कितनी है 4 और 8 12, 12 और 4 16। एक ऑक्सीजन इधर फालतू होगी ना वाटर वाली, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा दोबारा से। इसको दोबारा से अगर हम बैलेंस करें, 5 सल्फर डाइऑक्साइड करें हम इसमें, तो हमारे वाटर बनेंगे। वाटर कितने बढ़ेंगे, 2। सल्फ्यूरिक एसिड हम कर दें 2। अब देखो अब बैलेंस हुई क्या, अब हमारे पास ऑक्सीजन होगी 4 दूनी 8, 8 और 10 18, 18 और 2 20, 4 और 8 12, 12 और 8 20। अब बैलेंस हो गई है। सो दिस इज हाउ इट डीकलराइजेज द पोटेशियम परमैंगनेट। थर्ड वन, ये जो आपका है HNO3 को रिड्यूस कर देगी NO2 में, HNO3 to NO2। so HNO3 plus H2O plus SO2, it will give you NO2 plus H2SO4। तो HNO3 को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, NO2 के अंदर। इट विल आल्सो रिड्यूस योर फेरस आयन, फेरिक आयन टू फेरस आयन, फेरिक टू फेरस आयन। इसकी भी रिडक्शन कर सकती है ये, FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2O, FeCl2 प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनना ही बनना है, और साथ में क्योंकि क्लोरीन है तो HCl भी बनेगी। तो हम इसको बैलेंस करें, इधर हम 2 लगाएं तो 6 क्लोरीन हो गई, 6 क्लोरीन हो गई, तो 4 तो यहाँ आ गई, 2 यहाँ लगाएं, 6 क्लोरीन पूरी हो गई। हाइड्रोजन हमारे पास इधर हो गए 4, इधर हमारे पास है 2, तो 2 लगाएं तो 4। ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 2 4, बैलेंस हो गई है। तो फेरिक आयन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, फेरस आयन में। एंड दिस इज द रिएक्शन नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू ग्रीन कलर। acidified potassium dichromate is converted into
ग्रीन कलर एक्चुअली क्या है कि ये ग्रीन कलर आता है क्रोमियम +3 की वजह से। पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। आप सबको पता है ये कैसे कलर का होता है, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। और जब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड SO2 प्लस H2SO4 रिएक्शन करेंगे हम, तो इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कर रहे हैं हम इसकी। तो इसके अंदर आपका जो है 3 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के लगेंगे और बैलेंस कर लीजिए आप, हो गई होगी 3 और 1 4 सल्फर, 3 और 1 4 सल्फर। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो भी बैलेंस होनी चाहिए। 4 और 12 16, 16 और 1 17, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 7 17। ये एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज जो मर्क्यूरिक आयन है, दे आर कन्वर्टेड टू मर्क्यूरस आयन। 2HgCl2 प्लस H2O प्लस SO2, it will give you Hg2Cl2 plus H2SO4 plus 2HCl. This will be the reaction। मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई। 2Hg2 में चले गए 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, सल्फर 1, ऑक्सीजन हो गई 2 और 2 4 4, पूरी बैलेंस। सो मर्क्यूरिक आयन को इट कैन कन्वर्ट टू मर्क्यूरस आयन। इसी तरीके से इट कैन ऑक्सीडाइज रिड्यूस आयोडेट्स टू आयोडाइड्स, आयोडेट्स टू आयोडीन, आयोडेट्स टू आयोडीन। आयोडेट्स आपको पता ही है क्या होते हैं, IO3। कोई भी आयोडेट ले लीजिए आप, जैसे पोटाशियम आयोडेट SO2 प्लस KiO3 प्लस H2O। when this reaction will be carried out, you will get 2KHSO4। इसमें सल्फेट नहीं बनता, इसमें हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ध्यान रखना है आपने। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस I2। और इसके अंदर जो हमारी बैलेंस करेंगे हम, तो 5SO2 लगेगा, 2KiO3 लगेगा, प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमारा 4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। तो आयोडाइड्स टू आयोडीन। इसी तरीके से क्यूप्रस आयन को, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में चेंज कर सकती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैं लिख देता हूं, वो लास्ट रिडक्शन रिएक्शन है, क्यूप्रस आयन टू क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl 2CuCl, यहाँ पे 2 को पराने तो 2CuCl पहले ही लगा लेते हैं हम, प्लस H2O प्लस SO2, इट विल गिव यू Cu2Cl2 प्लस H2SO4, Cu2Cl2 प्लस SO4, CuCl2 था प्लस 2HCl, तो हाइड्रोजन 4 हैं तो 2 ये लग जाएंगे। सो दीज आर द रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्योंकि हमारी सल्फर इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड में 4 बॉन्ड बना रही है, जबकि ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकती है, सो इट इज इन दैट सेंस इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये बहुत सी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन रिएक्शन शो करती हैं।
जैसे नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो रिड्यूसिंग नेचर के बाद जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर पहली रिएक्शन तो आपकी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, विच इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड टू बी डिस्कस्ड टू गिव यू 2SO3 गैस in presence of catalyst vanadium pentoxide. So this is a combination reaction. इसी तरीके से अगर सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं in presence of sunlight, your sunlight, it will give you SO2Cl2. इसी तरीके से अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें लेड डाइऑक्साइड के साथ PbO2 plus SO2, then it will give you PbO प्लस SO3, लेड मोनोऑक्साइड प्लस आपकी क्या बन जाएगी, बट इट विल कंबाइन, बेसिक है एसिडिक है, लेड सल्फेट ही बना दो सीधा, PbSO4। तो आपके ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं कुछ। दीज आर द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्योंकि ये रिड्यूसिंग है नेचर में, इसलिए ब्लीचिंग की तरह एक्शन काम भी करता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन भी काम करता है। सो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन जो होता है वो एक तो टेम्परेरी होता है, परमानेंट ब्लीच नहीं करती किसी भी चीज को, और ब्लीच करेगी कब, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने कहा रिडक्शन से ब्लीच करेगी ये, और रिडक्शन से ब्लीच ये कब करती है, जब ये रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन से ब्लीच करेगी। कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट विल बी रिड्यूस्ड, कलर्ड मैटर विल बी रिड्यूस्ड टू ए कलरलेस स्पीसीज। तो लेकिन जैसे ही उसको ब्लीच सब्सटेंस को आप एयर में लेके आएंगे, इट विल बी, कलर विल बी रीस्टोर्ड। दोबारा से आपका कलर जो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इसमें इंपॉर्टेंट यूजेस के अंदर आप कर सकते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की काम करता है ये, सिल्क वूल वगैरह को करने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए काम में आता है ये, बाईसल्फाइड सल्फाइड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है, जर्म्स को किल करने के काम आता है। इट इज़ आल्सो ए वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। जो लिक्विड सल्फर है दैट इज आल्सो यूज्ड एज ए नॉन पोलर योर सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और शुगर में भी यूज करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड को। दीज आर द सर्टेन यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो विद दिस वी फिनिश our lecture over here. In the next lecture we will be discussing the last compound of this family, that is the sulfuric acid. Thank you very much.